उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सरकार ने 1990 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रेणुका मिश्रा को 14 जून 2023 को महानिदेशक व अध्यक्ष उप पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने बताया कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी संतक्त निदेश राजीव कृष्णा को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न पत्र दी थी और लीक होने के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आरोपों की जांच उप पुलिस के विशेष कार्य बल से कराने की भी घोषणा की थी। इजराइल में एक भारतीय की मौत हुई है और 2 घायल हुए हैं। ये सब हुआ लेबनान के मिसाइल हमले से। सोमवार 4 मार्च को इजराइल के उत्तर में स्थित एक बगीचे में लेबनान के एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी चपेट में आकर एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य इस मामले में घायल हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये भारतीय मूल रूप से भारत के केरल के रहने वाले हैं। पीटीआई से बात करते हुए इजरायली बचाव सर्विस के प्रवक्ता जाकी हेलर ने हमले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिसाइल ने स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह 11 बजे इजराइल के उत्तर में स्थित गैलीली इलाके के मार्गलियाड गांव को हिट किया। इसके निशाने पर कृषि से जुड़ी एक फार्म आई है। भारत ने देश में आगामी लोकसभा चुनावों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क द्वारा उठाई गई अनुचित चिंताओं का हरता से खंडन किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बगाची ने कहा कि टिप्पणियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। I am, however, concerned by increasing restrictions on the civic space, with human rights defenders, journalists, and perceived critics targeted, as well as by hate speech and discrimination against minorities, especially Muslims. It is particularly important in a pre-electoral context to ensure an open space that respects the meaningful participation of everyone. We have noted his comments about his concerns in this regard are unwarranted and do not reflect the reality of the largest democracy in the world. It is imperative that those in positions of authority do not allow their judgment to be clouded by propaganda. In India, with an electorate of 960 million people, the coming election will be unique in scale. I appreciate the country's secular and democratic traditions and its great diversity. I am, however, concerned by increasing restrictions on the civic space, with human rights defenders, journalists, and perceived critics targeted, as well as by hate speech and discrimination against minorities, especially Muslims. It is particularly important in a pre-electoral context to ensure an open space that respects the meaningful participation of everyone. I welcome the Supreme Court's decision last month on campaign finance schemes upholding the right to information and transparency. President, we thank the High Commissioner for his global update. We have noted his comments about our forthcoming general elections. However, his concerns in this regard are unwarranted and do not reflect the reality of the largest democracy in the world. In any democracy, argumentation is natural. It is imperative that those in positions of authority do not allow their judgment to be clouded by propaganda. Plurality, diversity, and inclusivity and openness are at the core of our democratic polity and our constitutional values. These are backed by fiercely independent institutions, including a robust judiciary that aim to protect the rights of all. Our electoral process has been characterized by a high degree of people's participation and full faith in the electoral mandate by all. In fact, we are privileged that many across the world seek to learn from our experience and aspire to emulate it. We have no doubt that, as in numerous occasions in the past, the Indian people will freely exercise their vote to choose a government that they believe can best give voice and flight to their aspirations. Mr. President, India, as home to 1/6 of humanity, has led from the front with an enduring dedication to promotion and protection of human rights for all. In this endeavor, our approach has been guided by our civilizational ethos. सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक ओम प्रकाश राजभर ने
5 मार्च को उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में एएनआई के साथ विशेष बातचीत में राज्य में आगामी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने बताया, हमें राजभवन या मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन सुनने में आया है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आगे की तैयारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वहाँ इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं 2 साल पहले मंत्री चुना गया था। मैंने सभी जिम्मेदारियां संभाली और उसके बाद कुछ कारणों से मैंने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए यह बात नहीं है कि मैं दोबारा मंत्री बन रहा हूँ। बात यह है कि मैं हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों और विकास के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। मंत्रालय के लिए अपनी प्राथमिकता को खारिज करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारी कोई मांग नहीं है। यह सीएम पर निर्भर है कि वह तय करे कि कौन सा विभाग देना है, किसके लिए। मेरे लिए कोई छोटा काम नहीं है। राजभवन से भी खबर कुछ लोगों द्वारा ऐसी बताई जा रही है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। तो कैसा अनुभव है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है। आप अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए आप लड़ो, समाज में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। इसके लिए हम उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है, कौन सा अगर आपको मंत्रिमंडल में? हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक और झटका लग गई है। सोमवार को कांग्रेस छोड़ने वाले अर्जुन मोढवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से विधायक मोढवाडिया ने कल ज़रात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा दी। गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक मोढवाडिया ने 2022 के चुनावों में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में बसपा के दिग्गज नेता बाबू बखरिया को हराया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात में प्रवेश करेगी, जिससे कुछ दिन पहले मोढवाडिया ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एकजुटता का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मार्च को यानी आज दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र के मोदी का परिवार नारे वाले पोस्टर प्रमुखता से लगाए गए। यह कदम राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की हालिया आलोचनाओं के सीधे जवाब के रूप में आया है। अभियान ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को रेखांकित किया है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 100 कागज का एक टुकड़ा आपकी योग्यता तय नहीं करता। स्कूल की मार्कशीट और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स के लिए घिसा हुआ बयान है।
मुराद ये कि किसी डिग्री या पर्चा से ये निर्धारित नहीं होता कि आप कितने लायक हैं। ये हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और मूल्यांकन पर भी कटाक्ष है कि किसी व्यक्ति की योग्यता का पूरा माप एक पन्ने पर नहीं आ सकता। मुमकिन है वो अपने विषयों में बहुत दुर्मम ना हो, मगर दुनियादारी का उसे अच्छा बान हो। राष्ट्रीय शिक्षक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के तहत एक मानक निर्धारण बॉडी है। परंतु इसी बॉडी ने नए समग्र रिपोर्ट कार्ड का मसौदा तैयार किया है। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की सिफारिशों जोड़ी गई। परंपरागत तौर पर स्कूलों में मूल्यांकन साल के अंत में ये बीच ली जाने वाली परीक्षाओं से होता था। इसका पूरा दारोमदार शिक्षकों पर था। HPC के मूल्यांकन को छात्र केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत छात्र अपने मूल्यांकन के लिए खुद भी जिम्मेदार होंगे और न केवल अपने बल्कि हर बच्चा अपने सहपाठियों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन भी करेगा। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन से पहले कांग्रेस विधायकों ने 5 मार्च यानी आज चंडीगढ़ में राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना किया। वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा एक दलित कांग्रेस विधायक पर की गई टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सुखविंदर सिंह कोटली गौरतलब है कि 4 मार्च को पंजाब विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से एक दलित डिप्टी सीएम नियुक्त करने की मांग की है।